Good morning, everyone. Myself, Safina Khanam from News Moments Network, welcomes you in News Moment English. Today is 8th March. Do you remember for what 8th March is famous for? It's International Women's Day. International Women's Day is celebrated on 8th March around the world. It is a focal point in the movement for women's rights. Several places, several organizations, whether governmental or non-governmental, Women's Day is celebrated in traditional manner. Some organize health checkup camp, some legal awareness camp, some political parties try to blame others for increment in crime against women. But none dares to protest when crime occurs openly. None tries to change the thought of men-dominated society which promotes crime or torture. We simply present the example of Ram and Sita, but who cares of Sita, who have to suffer exile after the comment of a washerman? Equal rights have no meaning till it comes from the core of a heart of the human male-dominated society to avail equal rights to female in every sphere of life. Let me introduce some points about International Women's Day. After the Socialist Party of America organized a Women's Day in New York City on February 28, 1909, German delegates Clara Zetkin, Käthe Dunker, Paulo Freire and others proposed at the 1910 International Socialist Women's Conference that a special Women's Day be organized annually. After women gained suffrage in Soviet Russia in 1917, March 8 became a national holiday there. The day was then predominantly celebrated by the socialist movement and communist countries until it was adopted by the feminist movement in about 1967. The United Nations began celebrating the day in 1977. Commemoration of International Women's Day today ranges from being a public holiday in some countries to being largely ignored elsewhere. In some places, it is a day of protest. In others, it is a day that celebrates womanhood. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ. मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट्स. Get up to 50% scholarship for the session 2021 to 22. Motion Durgapur Center. Phone number 9434822278. Most common type of crime against women is rape. In most of the states of India, it occurs. Rape is the fourth most common crime against women in India. India recorded an average of 87 rape cases daily in 2019 and overall 4,05,861 cases of crime against women during the year, a rise of over 7% from 2018. The latest government data released on September 29, 2020. When it comes to women's safety in India, it is a fact that the country where we supposedly worship women as goddesses is no longer safe for women. Women's safety has become a big issue in India. It is a shame that in India, rapes take place every day. Rape is a disease which has no boundaries. From parties to workplaces to our homes, rape and harassment have become a norm. Asansol is a big city of West Bengal. How it can be different from the other cities in this matter? Following data has been collected from the site Crime Against Women in Asansol. Major crime against women in Asansol. The following table shows the major crimes in Asansol that fall under our 4 categories. This is, of course, not an exhaustive list, but describes a fair proportion of what the serious crimes in Asansol are. There is nothing to rejoice. There is need to bring change without any pressure so that our female part can have equal share in the society to be part of the development of the country. Let us hear roaring voice of a newsreader who asks something from the society. मजबूर होना पड़ेगा. आखिर ऐसा क्यों? कब तक लड़कियों का शोषण होता रहेगा? कब तक जाति के हिसाब से बलात्कार जैसी घटनाएं घटेंगी? कब तक विश्व गुरु बनने वाला यह समाज उनकी हत्या करता रहेगा? कब तक ऐसे समाज में पुरुषों के अत्याचार को सामना करना पड़ेगा जहां औरतों को देवी माना जाता है? एक ऐसा समाज जहां औरतों को देवी माना जाता है, उसी समाज में उन देवियों की हत्या हो रही है. आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कानूनन तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तविक में बराबरी का अधिकार महिलाओं को आखिर कब मिलेगा? कब ऐसा समाज बन पाएगा जहां लड़कियों को पूर्ण रूप से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होगा? लड़कियों पर शारीरिक अत्याचार आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक एक लड़की अपने जीवन साथी स्वयं बिना किसी दबाव में आकर, बिना किसी अत्याचार के चुन पाएगी?
कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां घरों में ही अच्छी लगती है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि लड़कियां हर एक वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। ज़रूरत है तो बस हिम्मत और ज़िद की। लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा ही यही मिलना चाहिए कि वह किसी भी काम के क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। उन्हें दिखावे की देवी कहकर घर में बंद रखने से बेहतर है असलियत में माँ दुर्गा जैसे देवी का रूप होने का एहसास उनमें भरा जाए। आखिर ये सब कब तक संभव हो पाएगा? कब तक हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे? A housewife by choice and teacher by profession has articulated, "She's too thin, she's too dark, she's too tall. Oh, don't go out in the sun. Who's going to marry you if you get tanned or dark? Oh, you're too tall. You're not going to get a boy." I mean, all this question doesn't come across you? Yes, it does. But why we? Why not men? All these questions come and it affects our mind, our mental stability, right? I, Neha Sylvia Rao, a housewife by choice, a teacher by profession, would like to highlight some points that why a woman is always questioned, why a woman is always bound to answer, why she has to take a permission, why she has to say everything and just do. Why can't she be independent? Instead of achieving so much today, a woman still has to take permission from her father, her husband. I mean, why? Why can't she do what she wants to do? Yes, before marriage, even if she is independent, she has to ask her father before doing something. After she is married, she has to ask her husband for doing something. Aren't we independent? Isn't that we have the right to do something? I, Neha Sylvia Rao, would like to say all the women out there, whatever we are, how we are beautiful. It's we who have to love ourselves. Let them judge us. Let the society judge us. It's not going to matter unless you love yourself. If you love yourself, you're going to like every part of you. She's a wife, she's a daughter-in-law, she's a daughter. One woman, so many roles to play. This Women's Day, I request all the women out there and all the beautiful women out there, embrace yourself, love yourself, because we are proud of what we are. Wishing all of you a very happy Women's Day. Thank you. Star Health and Allied Insurance Company Limited, recruiting health insurance advisors, bright career opportunity, big opportunity with zero investment and more benefits. Contact number 73650-26180. Now I am going to present views of a lady who works in a bank. मैं मीनाक्षी मोहन का आपके अपने आसनसोल से आज 8 मार्च 2021 इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार। आज वुमेन्स डे पे सब नारी को सशक्त करने की बात करते हैं। आज वुमेन्स डे पे सब नारी को रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं। पर ऐसा एक दिन हम बनाते ही क्यों हैं? क्या ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट साल के हर दिन नहीं होना चाहिए? फिर तो हमें मेंस डे भी मनाना चाहिए, क्योंकि साल का एक दिन तो वो भी डिजर्व करते हैं। तभी तो बराबरी की भी बात होती है ना। ये सब बातें तो आज के दिन सभी को ही कहेंगे, पर मैं आपके सामने कुछ और कहना चाहती हूँ। आज वुमेन्स डे पे मैं हाउसवाइफ्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाउसवाइफ्स कैन बी योर मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी खुद की बेटी हो सकती है। क्या आपको कभी ये नहीं लगता है कि उनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है? आज हम अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाते हैं? अपने पढ़ाई में, ऑफिस में, बिजनेस में सक्सेस कैसे पाते हैं? ये ऐसा गुमनाम शख्स है जो वो हर कुछ बिना कहे कहता है, जिससे हमारे लाइफ का बैलेंस बना रहता है। हमें संडे मिलता है और भी छुट्टियां मिलती हैं, बट ये लाइफ मतलब साल के 365 दिन काम करते हैं बिना किसी
शिकायत के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिना किसी थैंक यू, इनफैक्ट वेल डन के भी। क्या आपको नहीं लगता साल के 365 दिन में से एक दिन ये भी डिजर्व करते हैं कि हम इन्हें भी छुट्टी दे सकते हैं, इनके लिए समय निकाल सकते हैं, कुछ ना सही एटलीस्ट इन्हें शुक्रिया कह सकते हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आइए मिलके हाथ बढ़ाएं। पीपल हैव ऑलरेडी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड कोर, सो 2 की जगह 4 हाथ लगाएं और उनका सम्मान बढ़ाएं। अंत में 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहना चाहूंगी जो अक्सर ये कहते हैं कि महिलाएं आखिर करती ही क्या हैं। सब कुछ करके भी कभी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। सब कुछ करके भी कभी कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं। महिला होना इतना भी आसान नहीं, महिला होना इतना भी आसान नहीं। धन्यवाद। Dr. Sabira Khatun, professor of Raniganj TDB College, has clearly stated कि त्रिवेणी देवी वारोटिया कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर हूँ। न्यूज़ मोमेंट ने मुझसे एक सवाल किया कि महिला दिवस के ताल्लुक़ से अपने कुछ ख़यालात का इजहार करें कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है फिर भी औरतों पर ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर बहुत सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक बात जो मेरी समझ में आती है कि औरतें किसी भी मैदान में किसी से भी कम नहीं हैं। औरतों को देखा जाए, चाहे वो IAS हो, IPS हो, WBCS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी शोबा हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, स्पोर्ट्स हो, यहाँ तक कि स्पेस हो, हर जगह औरत ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हर जगह लड़कियां कामयाब हुई हैं। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और दीगर कई तरह की मिनिस्ट्री भी औरतों के कब्ज़े में रही है। औरत खातून खाना भी है, औरत ने घर को भी खूबसूरत बनाया है, औरत ने बाहर भी संभाला है, हर मुहाज पर वो कामयाब रही है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो औरतों के साथ ही इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं जिन पर निहायत ही अफसोस होता है, दिल कुढ़ जाता है, दुखता है। वजह क्या है? आज औरतें इतनी कामयाब हैं कि सारी दुनिया में देखिए 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन यानी कि महिला दिवस मनाया जाता है। वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, यानी औरतों ने पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी साबित की है। और सच भी यही है कि ये दुनिया की जो गाड़ी है इसके 2 पहिए मर्द और औरत हैं। और औरत न रहे तो दुनिया की ये गाड़ी ऐसे ही थम जाए। कई धर्मों ने, बल्कि तमाम ही धर्मों ने औरतों को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। हिंदू धर्म ने तो उसे देवी का दर्जा दिया है, देवी का रूप दिया है। इस्लाम ने तो माँ के कदमों में जन्नत रख दी है। क्या नहीं है? हर जगह इज़्ज़त व एहतराम, हर धर्म में, हर धर्म की पुस्तक में, किताबों में, आसमानी किताबों में, सहीफ़ों में औरत को एक बुलंद व बाला मकाम दिया गया है। फिर भी आज औरत ही सताई जा रही है, आज औरत ही परेशान की जा रही है। कभी जहेज़ के नाम पर, कभी किसी और चीज़ की वजह से, कभी लड़की पैदा करने के जुर्म में, कभी आला नौकरी के हुसूल में, कभी ज़बान खोलने पर, लब खोलने पर औरतों को तरह तरह से परेशान किया जाता है। एक शायरा ने कहा है कि आज हमारे मुल्क में यारो लकड़ियाँ ही नहीं लड़कियाँ भी जलाई जाती हैं। ये हो रहा है, हमें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा वो घराने ज़िम्मेदार हैं, वो माएँ ज़िम्मेदार हैं जो जब बच्चे पैदा करती हैं और पैदा होने की सूरत में जब बच्चे बाहर आते हैं उनकी जो तरबियत करती हैं। अगर वो बेटा होता है तो उसे ये नहीं बताती कि अपनी बहनों की इज़्ज़त करो और अपनी बहनों की तरह दूसरों की बहन बेटियों की भी इज़्ज़त करो। अगर उनकी घुट्टी में ये बात पिलाई जाती तो शायद वो बच्चे जब बड़े होते, जैसे जैसे बड़े होते, वो औरतों का एहतराम करते, उनकी इज़्ज़त करते और उनको अपनी ही माँ बहन की तरह समझते। तब जाकर बाहर में ये जो एक दूसरे पर
जो जिनसी स्कैंडल्स होते हैं, जो रेप्स होते हैं, जो इज़्ज़त लूटी जाती है, इन सब चीज़ों पर रोक लगता। इसकी पहली तरबियत, इसका पहला सबक, इसका पहला मकतब, इसका पहला स्कूल घर होना चाहिए मेरी दानिश में। दूसरी बात यह कि अगर हम अपने बच्चों को लड़कियों और बहनों की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, माँओं की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, अपने ख़ानदान की दूसरी औरतों की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, तब ये बच्चे बड़े होकर जैसे जैसे बड़े होंगे एक अच्छे नेशन की तामीर करेंगे, एक अच्छे मुल्क की तामीर करेंगे, और दुनिया में जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेगा। उसी तरह से जहेज़ की अगर बात की जाए, अगर औरतें ही इस मामले में अगर इस बात पर ध्यान दें कि माँ बनकर वो अपने बेटे के लिए जहेज़ न ले, बहन बनकर अपने बेटे के लिए जहेज़ न ले, और लड़के जो नौजवान लड़के हैं अगर वो भी ये कहें कि हम जहेज़ लेकर शादी न करेंगे, तो फिर जहेज़ के नाम पर भी जो दुष्कर्म होते हैं, जहेज़ के नाम पर भी जो जुल्म होता है, जो तशद्दुद होता है, जो वायलेंस होता है, उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेटेड न बनाएं, बल्कि उन्हें वेल ट्रेंड करें, घरों के अंदर भी, घरों से बाहर भी, ताकि वो घर से जब बाहर निकले तो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे इंसान बनकर निकले। हम पढ़ाएं इसलिए नहीं कि वो नौकरी हासिल करें, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। बस मुझे यही कहना है कि अगर घर में माएँ और ख़ानदान वाले अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बाहर में जो जुल्म तशद्दुद का बाज़ार गर्म है उसमें भी कमी आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा वतन दुनिया में सबसे अच्छा, और हमारी ये जो पूरी दुनिया जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और इसमें मर्द औरत दोनों ही अल्लाह की मखलूक बनकर चैन और सुकून से ज़िंदगी। Let us have some lines of nazm by Shaira Nigar Ara on Women's Day. मैं निगार आरा हिंदुस्तानी औरत के हवाले से 4 मिसरा पेश करती हूँ, समात फरमाएं। तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ। खुदा ने दी है, खुदा ने दी है जो नेमत, तेरे दिल की ज़रूरत हूँ, खुदा ने दी है जो नेमत, तेरे दिल की ज़रूरत हूँ, तेरे दिल की मैं राहत हूँ, सुकूने क़ल्ब की खातिर, तेरे दिल की मैं राहत हूँ, सुकूने क़ल्ब की खातिर, तेरे ही वास्ते, तेरे ही वास्ते मैं ता क़यामत खूबसूरत हूँ, तेरे घर की मैं रौनक हूँ, तेरे घर की मैं जीनत हूँ, खुदा ने दी जो नेमत। Now, hear patiently some lines of poem in Hindi by Suman Kumari, a student of MPhil. मैं अपनी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्त्री। मैं स्त्री हूँ, बाहर से सुंदर और अंदर से खोखली सी, हंसती तो हूँ पर मौन नहीं, सहती हूँ बस बोलती नहीं, दर्द से भरी हूँ पर हारी नहीं, हाँ मैं स्त्री हूँ। मान तो है पर अपमानित नहीं, हंसकर जवाब देने की आदत सी है, उसे चरित्र का प्रमाण मत समझना, औरत हूँ वजूद से मत खेलना, मौन हूँ कमज़ोर मत समझना, हाँ स्त्री हूँ असहाय मत समझना। धन्यवाद। Now we have Vidyotma Jha, a teacher who has opined about Women's Day. स्कूल की अध्यापिका हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ और बीसरगढ़ में रहती हूँ।
आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले इस्मत चुगताई को याद करना चाहूँगी। एक समय ऐसा था, लड़कियों के हालात इतने बदतर थे कि इस्मत चुगताई को कहना पड़ा था, अगले जन्म में मोही बिटिया ना कीजो। और इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं। अब हम लोगों ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां हम लोग आकर कह सकते हैं कि अगले जन्म में मोही बिटिया ना कीजो से लेकर अगले जन्म में मोही बिटिया ही कीजो का सफ़र तय किया है। इस सफ़र को कईयों ने आसान और कुछ ने मुश्किल किया है। साथियों, हम लोगों ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उनमें हमें हमारे साथियों का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का बहुत सहयोग मिला है। कुछ ही लोग हैं जो हमारी राहों में अड़चने डालते हैं, तो ऐसे लोग नगण्य के बराबर हैं, इन्हें ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन मैं उन सभी पुरुषों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन पुरुषों ने पिता बनकर, भाई बनकर, पति बनकर, मित्र बनकर किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को उनके लक्ष्य हासिल करने में हर तरह से मदद करते रहे हैं। सभी महिलाओं को इस दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि हमें इस सृष्टि को सुंदर बनाने में अपना सर्वोत्तम योगदान देना चाहिए। हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी हो, परिवार की हो, अपने पेशे की हो, देश की हो, मानव जाति की हो, जो भी जिम्मेदारी हो उसे हमें बखूबी निभाना चाहिए और हम निभा सकते हैं। इसे तो हमने कई बार साबित किया है और साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बस सिर्फ परफॉर्म करना है। साथियों, महिलाओं की तमाम उपलब्धियों के बीच एक बात आज भी चिंताजनक बनी हुई है, वह है महिलाओं का लगातार प्रताड़ित किया जाना। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। आज भी महिलाएं बाहर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात है, इसका इलाज तो अच्छे संस्कार से ही हो सकता है और महिलाओं को जागरूक भी रहना पड़ेगा। घरेलू हिंसा का शिकार अगर वो हो रही हैं तो उन्हें प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। इसे अपने परिवार का निजी मामला नहीं समझना चाहिए। जहां हमें सारे कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करना है, वहीं अपने आत्मसम्मान की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जहां तक घर के बाहर की प्रताड़ना की बात है, शारीरिक, मानसिक शोषण हो या असम्मान की भावना हो, ये सारी समस्याएं तो कानून से जुड़ी हुई हैं। हमारा कानून, हमारा समाज जितना जागरूक होगा, जितना महिलाओं के सम्मान को महत्व दिया जाएगा, उतना ही ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अपने साथियों से यही निवेदन है कि वो घर में रहें, बाहर में रहें, अपने सम्मान को लेकर हमेशा सतर्क रहें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको महिला दिवस की बधाई। An owner of a school, पहला कदम had her own different views on दिव्यांग it. बच्चों की स्कूल से वर्ल्ड वुमेन्स डे की उपलक्ष्य पे कुछ अपनी ही बहनों के बारे में मैं कहना चाहूँगी
जबकि पहले से स्थिति हम महिलाओं की बेटर हुई है और हमारा देश पहले भी पुरुष प्रधान देश था, आज भी पुरुष प्रधान देश ही है, क्योंकि किसी भी महिलाओं को प्रधान माना जाता है पर प्रधान बनाया नहीं जाता, क्योंकि आज भी उसे उस तरीका से हर क्षेत्र में, चाहे वो दृष्टिकोण हम अपने घर से देखें या घर से बाहर के समाज में देखें या राजनीति में देखें, जो स्थिति महिलाओं की हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है, हमसे छुपी नहीं है। कहीं न कहीं आज भी हम समाज से पिछड़े कहलाते हैं, कहीं न कहीं आज भी हम हर रोज़ शोषण करवाते हैं अपना, खास करके उस जगह पे जहाँ पे अशिक्षित लोग हैं। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जो हमारे शहर से कुछ हट के है, जहाँ पे हर रोज़ हम महिलाओं का शोषण होता है। हम आज महिला दिवस पे यही संदेश देंगे, हर लोग को जागरूक होना चाहिए और अपना बचाव खुद करना चाहिए, चाहे हम अपने घर से ही क्यों न स्टार्ट करें। घर से लेके समाज तक, समाज से लेके देश तक और देश से लेके विश्व तक अपनी सुरक्षा हम खुद करें। जय हिंद, जय भारत। Ruma Singh, Pradhan of Domahani Gram Panchayat says, জানাই অনেক অনেক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আগেকার দিনে আপনারা দেখবেন যে নারীদের সম্মান কোন জায়গায় ছিল। কিছুদিন আগে আপনারা ফেসবুকে একটা ভিডিও হয়তো ভাইরাল হতে দেখেছেন যে একজন মেয়ে যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে তখন তার মা ঠাকুমারা হাতে এক মুঠো চাল দিয়ে তাকে বলল যে পেছন দিয়ে মায়ের কাছে ছুড়ে দে আর বল যে মা তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি সেই জায়গায় হেসে বলল, না, মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না। এই ভিডিওটা থেকে আমাদের সকলের একটাই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে দেশ আর পৃথিবী আজ কোন জায়গায় এগিয়েছে, যে মেয়ে সত্যি মাদের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না আর মেয়েরা কখনোই পরোয়া সম্পত্তি নয়। এটার একটাই আমরা ধন্যবাদ জানা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে। তিনি নারী সুরক্ষা, নারীর উন্নতির দিকে যেভাবে লক্ষ্য দিয়েছে, আজ নারীরা আমরা সব দিক দিয়ে এগিয়ে আছি। তার একটা প্রমাণ হচ্ছে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী এবং সবুজ সাথী। কন্যাশ্রীর মেয়েরা যে স্কুল থেকে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে হেল্প করছে, সেই টাকা নিয়ে নিজেদের পড়াশোনা স্বাধীনভাবে চালাচ্ছে। আজ মেয়েরা চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি নেই, তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই যে তিনি নিজে একজন মহিলা হয়ে যে 10 বছর ধরে তিনি এইভাবে নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, নারীদের সর্বদা পাশে থেকেছেন। আমি চাইব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে এবং সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন, যেমন এই রকম মুখ্যমন্ত্রী আমরা বারে বারে পাই পাশে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই বলে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। নমস্কার। পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা কত পার্সেন্ট এখনো? পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা কত পার্সেন্ট বললে হয়তো ভুল হবে, কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আমরা নারীরা আগেকার থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত হয়ে আছি। বিশেষ করে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছিলেন হাতরাসের ঘটনা, গুজরাটের ঘটনা। সেখানকার নারীদেরকে মর্যাদাই দেয় না, নারীদের অস্তিত্ব কিছু বোঝাই যায় না। কিন্তু আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে নারীরা মাথা উঁচু করে স্বনির্ভর হয়ে যে এগিয়ে যাচ্ছি, এটা সব কিছুই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হই। তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনার নাম? আমার নাম রুমা সিং। Mansi Paul, supervisor of an NGO and an ICDS Karmi, have her own views on it. অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের এতই উন্নতি হয়েছে আমাদের নারীর, যে আজকে আমরা নারী দিবস পালন করতে এতটুকু পিছুপা হচ্ছে না। আজকের দিনটাতে 1857 খ্রিস্টাব্দে 8ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সুতো কারখানার মহিলারাই প্রথমে আন্দোলন শুরু করেছিলেন নিজেদের দাবিতে। বর্তমানে আমাদের ভারতের সংবিধানে আমাদের নারীদের উন্নয়ন বা আমাদের উন্নতি অনেক কিছুই ঘটেছে, কিন্তু নারীদের সুরক্ষার দিক থেকে আমাদের কিন্তু অনেকটাই ভারত পিছিয়ে আছে। তার উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের যে ঘটনাটা ঘটেছে, যে খুবই লজ্জাজনক।
সেক্ষেত্রে আবার আমাদের ভারতবর্ষের রাজ্য পশ্চিমবাংলাতে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এতে আমাদের নারীদের এত উন্নয়ন এবং এত সামাজিক সুরক্ষা এবং এত দিক থেকে আমাদেরকে উন্নত করে দিয়েছে যে আমরা তার ছত্রছায়াতে আমরা খুবই গর্বিত। যেমন রূপশ্রী, কন্যাশ্রী শিক্ষা থেকে শুরু করে আমাদের শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্ব বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই আমাদের নিজের মহিলাদের নিজের উন্নতি এবং সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আবার আমরা মুখ্যমন্ত্রী পদে আমরা দেখতে চাই এবং তার জন্য আমরা নারীরা যেভাবে সম্মানিত হয়েছি, একদিন তো আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম নারীরা, পড়াশোনার দিক থেকে পিছিয়ে ছিলাম, সব দিক থেকে। কিন্তু আজকে দেশে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তার দেখে আমরা অনুপ্রাণিত আজকে। তো আজকে উনি যেভাবে আমাদের পিছনে যে কন্যাশ্রীতে মেয়েদেরকে পড়াশোনার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, তারা টাকা পাচ্ছে, তারা শিক্ষাশ্রীতে টাকা পাচ্ছে, সবুজ সাথী দিয়েছেন, তারা পড়াশোনা করতে পারছেন, সেদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নারীরা অনেক এগিয়ে এবং সেখানে আমাদের পড়াশোনার হারটাও নারীদের ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেজন্য আমরা এখানে অনেক নিরাপত্তা, যেখানে আজকে আমাদের বাইরে যে নারীদেরকে আমাদের ধর্ষণের যে নারীরা অসম্মানিত হচ্ছে, সেদিক দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক ভালোভাবে বসবাস করছি। আমি চাই প্রত্যেক নারীরা যেমন স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে দেশে, সেই ব্যবস্থা আমাদের সুরক্ষিত করা হোক। এই আমাদের নারী হিসাবে আমাদের কাজ, আমাদের সরকারের প্রতি, প্রত্যেকটা সরকারের প্রতি আমাদের দাবি এবং আমরা যাতে ভালোভাবে শান্তিতে সুখে। Now a video of simple dance of Khela Hobe. Someone made this video go viral on social platform, after which a woman is heard requesting the person to delete the video, but he turned down her request roughly. कौन? आपको उस टाइम बोले थे ना भाईजान की जो ग्रुप में वीडियो डालें उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, तब क्यों नहीं किया अभी तक? आपका जिम्मेदारी में है मका, आप हैं कौन? सुनिए ना, आप वीडियो डिलीट कर रहे हैं या फिर हम ये रिकॉर्डिंग उत्पल दा को सेंड करें? आपको उत्पल दा को सेंड कीजिए या मलाई घटक को सेंड कीजिए, हमको डराइए हो रही है मत। सुनिए ना, डरा नहीं रहे हैं। नाचने वक्त अफरोज बाबू को नहीं समझ में आया था तो हमको वीडियो डिलीट कर तुम हुक्म चला रही हो का? मलाई घटा से डरा रही है हमको। सुनिए ना, पार्टी करते हमको चमका रही है का? सुनिए ना, नेता को ना पॉकेट में रखे, तुम हल्का में लिए का? तुम मलाई घटक को बोल देंगे, उत्तम दा को बोल देंगे। सुनिए ये रिकॉर्डिंग हमको जा जोश को देना, बोल देना जा। This is the real scene of Women's Day, which compels a woman to hide her from the scene of dance and criticism of the public. Leader of Mahila Congress demands freedom. She is Zinat Parveen from Railpar OK Road. के माध्यम से अपनी दो चार बातें रखना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी को ये पता है कि कल 8 मार्च है और कल के दिन पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस त्यौहार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर इस त्यौहार को मनाने से पहले क्या हमारे जो ऊंचे तबके के लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर और जितने भी हमारे हाई पोस्ट वाले लोग हैं, क्या ये जानते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? हम महिलाओं को हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को भी हिंदुस्तान में आज़ादी मिलनी चाहिए और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। Women are angels, and when someone breaks our wings, we simply continue to fly on a broomstick. We are flexible like that. Thank you all for watching this special episode on Women's Day. Thank you.